नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। विश्व में अब तक कोरोना के 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं देश में 71 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं और गुजरात में कोरोना केस की संख्या अब 1,52,000 पर पहुंच गई है। अब खबरों पर नजर डालेंगे, उससे पहले देखते हैं सबसे पहले हेडलाइन। लगातार विरोध के बाद राज्य सरकार ने लिया निर्णय, फिलहाल नहीं होंगे स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव। ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का गोवा कांड उजागर, दुष्कर्म मामले संचालक गिरफ्तार। और तलाटियों को सत्ता दिए जाना वकीलों को मंजूर नहीं, पुतला दहन के साथ विरोध प्रदर्शन। शहर की सबसे बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव प्रचार को लेकर हो रहे विरोध के चलते राज्य सरकार ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को 3 महीनों तक स्थगित कर दिया है। यानी दिसंबर महीने में होने वाले वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव भी अब टल गए हैं। नवंबर महीने में गुजरात में विधानसभा के उपचुनाव आयोजित होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव के प्रचार को लेकर राज्य सरकार पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। कई संगठन इस चुनाव प्रचार का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव फिलहाल रद्द कर दिए हैं। 6 महानगर पालिका, 55 नगर पालिका और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव नवंबर के बाद कराए जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के बीच चुनावी तैयारियां सरकार के लिए भी मुसीबतों भरी बन सकती थी, जिसके मद्देनजर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव को फिलहाल 3 महीनों तक टाल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खबर पड़ी गई कि આવનારી ચૂંટણી એમને હાર નિશ્ચિત જ હતી અને જેના અનુસંધાનમાં જ એમને ખબર છે કે આવનારા 2-3 મહિનાની અંદર કદાચ પબ્લિકને ખુશ કરવા માટે કોઈ થોડા ઘણા જે કામો રહી ગયા છે એ કામોને ધ્યાનમાં રાખી કદાચ આવનારી જે પેટા ચૂંટણીઓ છે, બિહારનું ઇલેક્શન છે, આ ઇલેક્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને જે રિઝલ્ટ આવે, જો મને એવું લાગે છે કે રિઝલ્ટ સારું આવશે તો કોરોનાની પરિસ્થિતિ સુધરી જશે અને જો રિઝલ્ટ ખરાબ આવશે તો કોરોનાની પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જશે। આ દેખીતું છે, કારણ કે જે 5-5 વર્ષ કામ નહીં કરી શકનારા લોકોને બીજા 3 મહિના એક્સટેન્શન, જો પેટા ચૂંટણીઓ વિધાનસભાની થઈ શકતી હોય મોટી ચૂંટણી, તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લંબાવવા પાછળનું કારણ શું છે? કારણ કે જમીન લેવલ પર જે કામ કરવાનું હતું એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સદંતર નિષ્ફળ થઈ છે। ચૂંટણી પંચ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઇશારે જ નાચતું હોય છે, એમાં કોઈ બેમત નથી અને એના એક ભાગરૂપે જ છે। કારણ કે કેવી રીતના વિભાજન કરવું, કેવી રીતના લોકોના સીમાંકનો ચેન્જ કરવા, અને એ ભારતીય જનતા પાર્ટી એમાં અવ્વલ નંબર છે। આ એક ચૂંટણીનું ફરી એકવાર 3 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપી એ આજનું મોત કાલે છે। લોકો જાણે છે, લોકો ઓળખી ગયા છે, લોકો કામ કરતા માણસને લોકો વોટ આપવાના છે। એ હવે કોઈ પણ ચૂંટણી આવશે, લોકો ગદ્દાર લોકો હશે, લોકોને પોતાના વોટ લઈ લોકોને જીતીને બીજા પાર્ટીઓમાં પક્ષાંતર કરે છે, સાથે સાથે લોકોના વોટ જીતીને લોકો પાસે જતા નથી। એટલે કામ કરનારા લોકોને આવનારી કોઈ પણ ચૂંટણી એ 3 મહિના પછી હશે કે 6 મહિના પછીની હશે, પણ હવે લોકો હોશિયાર થઈ ગયા છે। એટલા માટે લોકો ગમે તેટલું આ ચૂંટણીના ઢાંગ પીછોડા કરશે, પણ રિઝલ્ટ તો જે આવવાનું છે એ જ આવવાનું છે। આ ફક્ત ચૂંટણીનું એક બહાનું કાઢી અને એક્સટેન્ડ કરવાનું છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે હાર નિશ્ચિત જ હતી અને જેના અનુસંધાનમાં જ આ एक्सटेंशन चुनाव पंच द्वारा करावવામાં આવ્યું છે। वडोदरा के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के संचालक द्वारा इंस्टीट्यूट की महिला कर्मचारी के शारीरिक शोषण का मामला गोत्री पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। महिला पर हुए दुष्कर्म की जांच पुलिस कर रही है। जेतलपुर रोड की ओरिएंट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी को कंपनी संचालक विजय दिनेश अग्रवाल द्वारा कॉन्फ्रेंस के नाम पर गोवा ले जाने का मामला दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने संचालक विजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गोत्री પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક બેને આવીને એક રજૂઆત કરેલી કે એ 2-3 વર્ષ પહેલાં ઓરિએન્ટ
એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની અહીં સંસ્થા ચાલે છે, એની અંદર નોકરી માટે ગયેલી અને ત્યાંના જે માલિક છે ડાયરેક્ટર વિજયભાઈ, એમણે એને ત્યાં આગળ ઇન્ટરવ્યૂ લઈને નોકરીએ રાખેલી. આ ભોગ બનનાર બેન જે છે એ ત્યાં આગળ કાઉન્સિલર તરીકે નોકરીમાં જોડાયેલી. નોકરી દરમિયાન ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર મળતા આ ડાયરેક્ટરના ટચમાં આવેલી. એ દરમિયાન એક એજ્યુકેશનલ ટૂરના નામે ગોવા જવાની વાત થયેલી અને ત્યારે આ ડાયરેક્ટરે જે ભોગ બનનાર છે એ બેનને ગોવા આવવું પડશે એવું જણાવેલું અને એ રીતે આ ભોગ બનનાર અને આરોપી ગોવા ગયેલા. ગોવા ગયા ત્યાં આગળ ફરિયાદીના કહેવા મુજબ આ જે આરોપી છે વિજયભાઈ, એણે ત્યાંની હોટલમાં ગ્રેન્ડ બિયાન્સ હોટલ છે એની અંદર એની જોડે 3 દિવસ સુધી દુષ્કર્મ કરેલું. અહીંયા આગળ બીજી એક વાત એવી પણ છે કે આ જે ભોગ બનનાર બેન છે એને પૈસાની જરૂર હતી, ત્યારે આ જે ડાયરેક્ટર છે એમણે એને 8 લાખ રૂપિયાની મદદ કરેલી હતી. 8 લાખ રૂપિયા પૈકી 3 લાખ રૂપિયા આ બેને પરત આપેલા અને બાકીના 5 લાખ રૂપિયાની ઉઘરાણી આ જે ડાયરેક્ટર છે આરોપી વિજયભાઈ એ કરતા હતા. અને એ દરમિયાનમાં આ ગોવાનો પણ બનાવ બનેલો. ગોવાથી પરત આવ્યા બાદ લોકડાઉન પહેલાં આ બેને આ નોકરી છોડી દીધેલી. આ જે આરોપી છે એણે એના બાકી રહેતા 5 લાખ રૂપિયાની માગણી ચાલુ રાખેલી. એ દરમિયાનમાં આ ભોગ બનનારે એને કીધેલું કે જે ગોવામાં તે કર્યું એ મારી જોડે સારું નથી કર્યું અને આટલો સમય સુધી સમાજની બીકે આ બેને ફરિયાદ નહોતી આપી અને હવે જ્યારે 5 લાખની ઉઘરાણી વધુ પડતી ચાલુ થઈ અને એ બાબતે એને ડરાવવા ધમકાવવામાં આવી ત્યારે આ બેને પોતાની ફરિયાદ આપેલી છે. આ ફરિયાદના કામે આરોપીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવેલો છે, એનો કોવિડ ટેસ્ટ થયેલો છે. વધુ તપાસ गोत्री पीआई श्री चौधरी साहब कर रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा नोटरी समेत की कई सत्ता तलाटी को दे दी गई है, जिस पर शहर के वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ये विरोध आज भी जारी रहा. कोरोना के चलते कई महीनों तक कोर्ट भी बंद रखे गए. ऐसे में वकील पहले ही आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं. ऊपर से राज्य सरकार ने नोटरी समेत के कई दस्तावेज को प्रमाणित करने की अनुमति तलाटी को भी दे दी है, जिस पर फिर एक बार वडोदरा के वकील मंडल ने दिवालीपुरा कोर्ट में एकत्रित होकर विरोध करते हुए पुतला दहन किया. परिपत्र बहार पाड़ी અને સોગંદનામું કરવાની જે સત્તા તલાટીઓને આપવામાં આવી છે એ કાયદાની પરિભાષા પ્રમાણે ખોટી છે. રાજ્ય સરકાર આવો ડેલિગેટ સોગંદનામું કરવાનો સત્તા આપી શકે નહીં અને આ સત્તા આપવાથી વકીલોને ખૂબ મોટો અન્યાય થઈ રહેલ છે. તેના વિરોધમાં આજે વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ રાખેલ અને હવે ટૂંક સમયની અંદર જ વડોદરા વકીલ મંડળ દ્વારા રીટ પિટિશન હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવશે અને ગુજરાતના તમામ પ્રમુખોને વડોદરામાં ભેગા કરી સમગ્ર ગુજરાતમાં આંદોલનનો વ્યાપ વધારવામાં આવશે. જે કાયદાઓ જે પરિપત્ર સરકાર દ્વારા પાડવામાં આવ્યો છે, આજે તલાટી એ ચોથા વર્ગના કર્મચારી કહેવાય. તલાટીનું ફંક્શન, તલાટીનું કાર્ય શું કે જે ગ્રામમાં તલાટીને રાખવામાં આવ્યો હોય ત્યાં જન્મ કોનો થયો તેની નોંધણી કરવાની હોય, કોનું મરણ થયું હોય તેની નોંધણી કરવાની હોય, કેટલો પાક થયો છે એની નોંધણી કરવાની હોય અને આવા 22 જાતના સોગંદનામા જો સરકાર દ્વારા એમને સોંપવામાં આવે તો તદ્દન गुजरात नहीं आखा भारत की घोर खोदाई जैसे. पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे 7 वकीलों को पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया. इस दौरान वकील हर्षद परमार ने वकील मंडल के वकीलों द्वारा किए जा रहे विरोध पर अपनी आपत्ति जताई. मारो तो कोई विरोध नहीं आमा, परंतु जाणवा मळ्युं के कोई पुतळा दान तो आ एक खोटी प्रणाली है. જ્યારે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે સ્પષ્ટ એમના પરિપત્રમાં જાણો અને દરેક બાર એસોસિએશનને એક લિખિત પત્ર કરીને જાણ કરી છે કે ભાઈ તમારો જે કંઈ વિરોધ હોય તમે ઠરાવ કરીને અત્યારની બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની કચેરીમાં મોકલી આપવું. અમારી માતૃ સંસ્થા છે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત અને સનદ જ્યારે અમને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તો એને ફોલો કરવો એ અમારી એક ફરજ છે.
લોકશાહીમાં વિરોધ કરવો જરૂરી છે, પરંતુ કોઈ રાજકીય રૂપે એને એક રાજકીય વેગ આપવા માટે થતો હોય તો એનો હું સખત શબ્દોમાં વખોડું છું. અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત જે કંઈ નિર્ણય લે એને અમે ફોલો કરીશું. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દરેક નિર્ણયને અમે માથે ચડાવીશું. गांधीनगर स्वास्थ्य विभाग और वडोदरा के स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा शहर की मिठाइयों की दुकानों से सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। गांधीनगर स्वास्थ्य विभाग और वडोदरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वडोदरा शहर के मार्केट 4 रस्ता निकट की मिठाइयों की दुकानों में औचक जांच को अंजाम दिया गया। गांधीनगर से आई हुई टेस्टिंग वैन द्वारा अलग अलग दुकानों से मिठाई में इस्तेमाल होने वाले मावे के टेस्ट सैंपल लिए गए। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और ऐसे में मावे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस जांच को अंजाम दिया जा रहा है। मावे के सैंपल को टेस्टिंग वैन के बाद लेबोरेटरी में भेजकर भी इसकी गुणवत्ता जांची जाएगी। FSSI તરફથી જ્યાં માવાનું વધારે વેચાણ થાય છે એ જગ્યાએ ખાસ ઇન્સ્પેક્શન કરવા માટે ગાંધીનગરથી એક ફૂડ વેન ટેસ્ટિંગ વેન મોકલવામાં આવી છે। વેન ખાતે વેનમાં પ્રોપર 3 ટેસ્ટ કરવાના છે અને એ જ માવાનું સર્વેલન્સ સેમ્પલ લઈ અને બાકીનો માવો લેબમાં ટેસ્ટિંગ કરવા માટે પણ મોકલવામાં આવે છે। હાલ માર્કેટ 4 રસ્તા ખાતેની જે દુકાનો છે ત્યાં ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી કરવામાં આવી છે। આજે ખાસ માવાનું જ ઇન્સ્પેક્શન અને ચેકિંગ અને સર્વેલન્સ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आजवा रोड पर 3 करोड़ की लागत से बनाया गया रात्रि बाजार अब फिजूल खर्ची साबित हो रहा है, जिस पर कांग्रेस के नगर सेवक अनिल परमार ने आक्रोश जताया। आजवा रोड बाईपास निकट विकास और लोक सुविधा के नाम पर 3 करोड़ 60 लाख की लागत से रात्रि बाजार तैयार किया गया है, लेकिन पिछले कई सालों से बनकर तैयार इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी के लिए कोई तैयार नहीं है। आजवा रोड पर 8 से 10 हजार रुपए में दुकान मिलती है। ऐसे में रात्रि बाजार का किराया 18,000 रुपए रखा गया है, जिसके चलते रात्रि बाजार में दुकान खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं और वीएमसी द्वारा किया गया ये खर्च अब वीएमसी के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिस पर नगर सेवक अनिल परमार ने आपत्ति जताई। 2015 થી આ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે। અમે વારંવાર સભામાં રજૂઆત કરેલી કે જંગલ મેં મંગલ, ત્યાં ગાડી કોઈ દિવસ રાત્રિ બજાર ચાલે નહીં। પૂર્વ વિસ્તાર હોય, હાઈવે બ્રિજ આવી ગયો હોય, બ્રિજની નીચે તમે રાત્રિ બજાર મૂકો પ્રોજેક્ટ તો એ સક્સેસ ના જાય। પરંતુ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરને ફાયદો કરાવવા માટે આ શાસક પક્ષે આ રાત્રિ બજાર તત્કાલ ધોરણે 3 કરોડના ખર્ચે મૂકી વડોદરા શહેરના લોકોના પસીનાના પૈસાનો વ્યર્થ કર્યો છે એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે। કારણ કે આ વસ્તુ વારંવાર એ લોકોએ જાહેરાત આપવા છતાં બી આની અંદર કોઈ ભાગીદારી થતું નથી। કારણ કે આજવા રોડ ઉપર 8-10 હજાર રૂપિયા ભાડે દુકાન મળતી હોય, એટલી બધી દુકાનો હોય, પરંતુ આ લોકો જે ડિપોઝિટ અને એનું જે ભાડું રાખે છે એ 18,000 રૂપિયા ભાડું હોય અને ડિપોઝિટ 3 લાખ રૂપિયા હોય કે 2.5 લાખ રૂપિયા હોય, એ ખરેખર વધારે હોવાના કારણે જે પડતર કિંમત પડી છે, પરંતુ લોકોના પૈસાનો વ્યર્થ કઈ રીતે કરવો એ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના શાસક પક્ષ અને વહીવટીતંત્રની મિલીભગતના લીધે વડોદરા શહેરના નાગરિકોને ભોગવવું પડે છે। અને આ એક નહીં પણ અનેક સ્કીમો અમને આવી ફેલ ગયેલી છે। થઈ ગયા પછી લોકોને કાલાવાલા કરવા પડે છે કે ભાઈ આ દુકાનો લો, અધર ખર્ચા કરવા પડે છે। वहीं इस मामले स्थायी समिति के चेयरमैन सतीश पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए विकास कार्य को अंजाम दिए जाने की बात कही। આપણે રાત્રિ બજાર જે બનાવ્યું છે એ પ્રજાને અનુલક્ષીને રાત્રિ બજાર બનાવ્યું છે। હાઈવે પર છે, પ્રજાને ત્યાં આગળ ધંધા થાય અને પ્રજાને પણ ત્યાં આગળ ફાયદો થાય, પણ એ રાત્રિ બજારને એક વખત ઓપ્શન કરી એમાં ના વેચાય, બીજી વખત ઓપ્શન કરી તો 6 વેચાયા હતા ને ત્રીજી વખત પણ ઓપ્શનમાં આપણે ત્યાંના ભાડાના રેટ ઘટાડ્યા છે અને નવેસરથી હરાજી કરવાના છે, જેથી ત્યાં આગળ આપણી જે આ જે વસ્તુ ત્યાં બનીને અત્યારે હયાત પડી છે એનો સારો ઉપયોગ થાય, સદુપયોગ થાય, પ્રજાજનોને એ બજારનો લાભ મળે, એના માટે ફરી આપણે ત્રીજી વખત રેટ ઘટાડી અને તેનું ઓપ્શન કરવા જઈ રહ્યા છે। વેચાણને એને આપણે ભાડે આપીએ છીએ અને ભાડે આપીને એનું ઓપ્શન લઈએ છીએ। એટલે પહેલી વખત જે ભાડે આપવા માટેના રેટ હતા એ હાઈ હતા, એમાં પહેલી વખત આપણે હરાજી બોલાવવા માટે આપી, એમાં કોઈ નહોતું આવ્યું। બીજી વખત રેટ કર્યા તો આપણે અંદાજે મારા ખાલી 5 થી 6 દુકાનો આપણી હરાજીમાં ગઈ હતી અને બીજી વખત બી ના ગઈ તો આપણે ત્રીજી વખત ઓપ્શન માટે રેટ ઘટાડ્યા છે અને એનું ઓપ્શન કરવાના છે।
वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में कोरोना से बचने आम जनता की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इस बीच वीएमसी के चुनाव की तैयारियां हो रही है, जिस पर सामाजिक कार्यकर पंकज दरवे ने आवाज उठाई है। आ वडोदरा महानगरपालिकानी कचेरी है અને આ કચેરીની અંદર વિવિધ એન્ટ્રી ગેટ છે। એ તમામ એન્ટ્રી ગેટ ઉપર સામાન્ય જનતાને પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવ્યા છે। અંદર કોઈને એન્ટ્રી લેવામાં નથી આવતી। એક બાજુથી એન્ટ્રી આપવામાં આવે છે, ત્યાં પણ 17 પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવે, અધિકારીને ફોન કરવામાં આવે, જો અધિકારી કહે તો જ એને અંદર એન્ટ્રી આપવામાં આવે। એટલે સામાન્ય નાગરિક જેની ફરિયાદો લઈને આવતો હોય છે એ નાગરિકને અહીંયા એન્ટ્રી બંધ કરી દેવામાં આવી છે। પબ્લિકના નાણાંથી ચાલતી આ સંસ્થા આજે પબ્લિકને અહીંયા પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવી છે। ટૂંક સમયમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી છે। જો સામાન્ય પબ્લિકના હોવાથી જો વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં કોરોના ફેલાતો હોય તો પછી આ લોકો જ્યારે પ્રચારમાં આવશે ત્યારે પણ પબ્લિક વચ્ચે આ કોરોના ફેલાશે અને શું પછી આ લોકોને ત્યાં પણ પ્રતિબંધિત લોકોએ ન કરી દેવા જોઈએ એવો પ્રશ્ન લોકો સામે ઊભો થાય છે। એટલે વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું આ જે મનસ્વી વર્તન છે એનાથી એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સત્તાના નશામાં કે લોકોને અહીંયા આવવા ન દેવાય, લોકો વિરોધ પ્રદર્શનો ના કરી શકે, લોકો પોતાની ફરિયાદો ના સંભળાવી શકે, એના માટે આ કોરોનાનું બહાનું લઈને આ લોકોને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે। सयाजीगंज के होटल में फाइनेंसर द्वारा की गई खुदकुशी की जांच सयाजीगंज पुलिस ने तेज कर दी है। इस मामले सुसाइड नोट में लिखे गए लोगों से पूछताछ की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों सयाजीगंज की होटल अमेठी में अहमदाबाद के अल्पेश पटेल ने खुदकुशी की थी। मृतक के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें 10 लोगों के नाम लिखे गए थे। इन सभी लोगों पर मामला दर्ज कर वडोदरा पुलिस फिलहाल अहमदाबाद में जांच और छापेमारी कर रही है, लेकिन ये सभी लोग अहमदाबाद से गायब हैं। ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी, घर, कार्यालय की तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। અલ્કેશ પટેલ અપમૃત્યુ કેસ જે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલો છે આઈપીસી 306 મુજબ, તેમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગોસાઈ સાહેબ અને એની ટીમ અમદાવાદ ખાતે જઈ તપાસ કરીને આવેલ છે। જેમાંના કુલ 10 આરોપીમાંથી 9 આરોપીઓના ઘરની સર્ચ કરવામાં આવેલ છે। આરોપીઓ કોઈ મળેલા નથી ઘર ઉપર। તેઓને તમામને સીઆરપીસી 41 મુજબની નોટિસ પાઠવી અને તેઓના જવાબો રજૂ કરવા માટે 12, 13 અને 14 તારીખ આપવામાં આવેલ છે। આરોપી ભરત ભૂતિયાનું લોકેશન અમદાવાદમાં વેરેબાઉટ એનું મળેલું નથી અને એનું વેરેબાઉટ અને લોકેશન પોરબંદર ખાતે મળે છે। તો પોરબંદર ખાતે પણ એક ટીમ ત્યાં જવા માટે રવાના થનાર છે। આરોપીઓના તમામ આશ્રય સ્થાનો અથવા ઠેકાણાઓ જે પોલીસના ધ્યાનમાં આવેલા હતા તે તમામ જગ્યાએ પણ સર્ચ કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ કોઈ આરોપી મળી આવેલ નથી। આ મરણ જનારના સગાવાલા અને એના સગા સંબંધીઓ તમામને પણ પૂછપરછ કરી અને એમના પણ નિવેદનો મેળવવામાં આવેલ છે। મરણ જનારના ઘરની એની ઓફિસની પણ સર્ચ કરવામાં આવેલ છે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ મેળવવા માટે। તમામ બેંકોને આ આરોપી તેમજ મરણ જનાર વચ્ચેના જે ફાઇનાન્શિયલ ડીલિંગ જો કંઈ થયેલા હોય તો તમામના ડોક્યુમેન્ટ્સો મેળવવા માટે થઈ અને પત્રોને વગેરે પાઠવવામાં આવેલ છે। આરોપી અને મરણ જનાર વચ્ચેની સીડીઆર મેળવવામાં આવેલ છે અને એને સીડીઆરનું એનાલિસિસ કરવામાં આવનાર છે કે મરણ જનાર અને આરોપી વચ્ચે કેટલી વખત વાત થઈ છે, કઈ પ્રકારની વાત થઈ છે તે બાબતની પ્રશ્નોત્તરી તૈયાર કરી અને આરોપીઓ આવેથી એ તમામ પ્રશ્નોત્તરીઓના ક્વેશ્ચન રૂપે એમને પ્રશ્નો કરવામાં આવનાર છે અને તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। બીજા જે કોઈ પણ અપગ્રેડ આવશે તે આપ સૌને અપગ્રેડ આમાં બાબતે કરવામાં આપવામાં આવશે। હાલમાં તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગોસ્વામી દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरमेंट द्वारा एचसीजी अस्पताल निकट चावला फार्म में राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ के हाथों मिनी फॉरेस्ट और गार्डन निर्माण का भूमि पूजन आज हुआ। जापानी फॉरेस्ट की तर्ज पर शहर में मियावाकी मिनी फॉरेस्ट का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 3500 जितने अलग अलग पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और यहाँ देश विदेश के पंछियों को बुलाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। ये पर्यटन स्थल लोगों में भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस मिनी फॉरेस्ट के निर्माण का तांदलजा रोड पर चावला फार्म में पर्यावरण के लिए शहर में कार्यरत सोक्लिन संस्था की अध्यक्षा राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ के हाथों उद्घाटन किया गया। हमने आज जापानीज सिस्टम मियावाकी सिस्टम है, उस हिसाब से हम एक फॉरेस्ट छोटी जगह में फॉरेस्ट बनाने के लिए
हमने आज उद्घाटन किया है, उसका खातमुहूर्त किया और यहाँ 10,000 स्क्वायर फीट में एक मिनी फॉरेस्ट का क्रिएशन करने वाले हैं। और सोकलिन की तरफ से एक पहल है कि शहर के बीचों बीच भी हम एक मिनी फॉरेस्ट बना सकते हैं जो लोगों के लिए पर्यावरण के दृष्टि से मदद रूप होगा। जंगल आएगा तो उसमें अपने आप पक्षी भी आएंगे, पर्यावरण की भी रक्षा होगी। तो इस तरह का पहल हम कर रहे हैं। तो एक बार ये हमारा सफल रहेगा तो दूसरे लोग भी इसका विचार कर सकते हैं कि छोटी जगह में भी एक जंगल बना सकते हैं। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहें हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 110 नए मामलों की पुष्टि हुई है। शहर में अब तक 13,166 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज सोमवार को जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन में नए 110 कोरोना केस पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई, जिसके साथ ही शहर में अब कोरोना केस 13,166 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,351 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4,241 सैंपल नेगेटिव आए हैं। एक व्यक्ति की आधिकारिक मौत भी दर्शाई गई है। शहर में कोरोना से मौत की संख्या 206 पर पहुंच गई है। 1,806 केस शहर में सक्रिय हैं, जिसमें से 1,581 मरीज स्टेबल, 162 मरीज ऑक्सीजन पर, 63 मरीज वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में 151 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया, जिसके साथ ही शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 11,154 हो गई है। 4 बार एयरफोर्स की परीक्षा में नापास होने के बावजूद अपने हौसले को बुलंद रखते हुए आखिरकार छानी के रोहित कुणाल कुमार ने एयरफोर्स की परीक्षा को पास कर लिया है, जिससे अब वे अपना सपना पूरा करेंगे।
देश की सेवा में जुड़ना देश के कई युवकों का सपना होता है और दिन रात मेहनत कर कई युवा देश पर मर मिटने के लिए सेना में जुड़ते हैं। वडोदरा शहर में श्रीराम एकेडमी ऐसे ही युवाओं के हौसलों को पंख देती है और श्रीराम एकेडमी से पढ़कर ही नवायाड़ के आरिफ पठान ने सेना को ज्वाइन किया था। अब शहर के छानी में रहने वाले एक और युवक ने अपनी कड़ी मेहनत से एयरफोर्स की परीक्षा पास कर ली है। रोहित कृणाल कुमार भाईलाल भाई ने 4 बार एयरफोर्स की परीक्षा में फेल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और लगातार हुए प्रयासों के चलते वे सेना में जुड़े हैं और अपना सपना अब पूरा करेंगे। મને એરફોર્સમાં પ્રસિદ્ધિ મળી ગઈ છે કારણ કે હું છેલ્લા 4 વર્ષથી એરફોર્સમાં જવાનું ટ્રાય કરતો હતો, પરંતુ હું એરફોર્સની 4 થી 5 રેલીમાં હું અસફળ રહ્યો હતો। પરંતુ આજે વડોદરામાં 2020માં એરફોર્સ વાય ગ્રુપની જે રેલી યોજાઈ હતી તેમાં મને સંપૂર્ણ સફળતા મળી ચૂકી છે અને અગાઉ મારું મેડિકલ થવાનું છે। મારો ફ્યુચર ગોલ જ હતો કે હું ડિફેન્સ સર્વિસમાં જોડાઉં અને તેથી મેં એરફોર્સ માટે લાસ્ટ 4 વર્ષથી ખૂબ જ તનતોડ મહેનત કરતો હતો, પરંતુ મને સફળતા મળતી નથી અને આ છેલ્લી લાસ્ટ ભરતીમાં મેં શ્રીરામ એકેડમીને જોઈન કરીને મને સફળતા મળી ચૂકી છે। આપણે જોઈએ છીએ એ રીતે કે આ ફેરા જે વડોદરામાં એરફોર્સ વાય ગ્રુપની રેલી યોજાઈ હતી તેમાં ન્યૂઝપેપરમાં પણ આપ્યું હતું કે 10,000 વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ભર્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી 1577 વિદ્યાર્થીઓના જ કોલ લેટર આવ્યા હતા। તેનું ફક્ત ને ફક્ત એક જ કારણ છે કે તે લોકોના માર્ક્સ ઓછા હતા અથવા તે લોકોને જે એલિજિબલ ક્રાઇટેરિયા હોય છે એરફોર્સનું એમાં તે લોકો સક્સેસફુલ નહીં થયા હોય, તેના કારણે તે લોકોનું કોલ લેટર નથી આવી શક્યું। પરંતુ જે મારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને સજેસ્ટ કરવા માગું છું કે એ લોકો શ્રીરામ એકેડમી છે જેવી બીજી કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેને જોઈન કરે, કારણ કે ઘરે બેસવાથી આપણને સફળતા મળતી નથી અને એકેડમીને જોઈન કરવાથી આપણે સચોટ मार्गदर्शन और गाइडेंस મળે છે, તેથી આપણને સફળતા ચોક્કસ મળે છે। देश भर में और गुजरात में महिलाओं के साथ खराब व्यवहार और दुष्कर्म जैसे बढ़ रहे मामलों पर आम आदमी पार्टी के महिला संगठन द्वारा आवाज उठाते हुए आज आवेदन दिया गया। महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बीच देश भर में महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल पैदा हो रहा है। महिलाओं से लेकर छोटी छोटी बच्चियां असुरक्षित है और उन पर लगातार दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी महिला संगठन द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर ऐसी वारदातों के गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई। आज गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी महिला संगठन अपने अपने क्षेत्र में कलेक्टर श्री के माध्यम से राष्ट्रपति जी को आवेदन पत्र देने आई हैं। हम मांग कर रही हैं महिला सुरक्षा की। हम ये कहती हैं कि एक तरफ दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हित के लिए इतने कदम उठाती है, तो राज्य और केंद्र की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? महिलाएं असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं और उनके ऊपर दिन रात दुराचार दुष्कर्म क्यों हो रहा है? गुजरात की सरकार, जहाँ पे गुजरात में खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहाँ पे भी महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं। हम लोग कई बार ये डिमांड लेकर कलेक्टर श्री नहीं गांधीनगर तक गए हैं, पर हम देखते हैं कि कुछ इसके लिए नहीं किया जाता और महिलाएं आज भी उतनी ही असुरक्षित हैं। तो यही मांग रखने के लिए हम आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और वो निडर होकर अपने कामों के लिए निकल सकें। कोरोना महामारी के बीच भी नॉलेज एक्सचेंज के लिए लगातार वेबिनार के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन वासद की SVIT कॉलेज द्वारा थाईलैंड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया गया। थाईलैंड की चुलालोंगकॉन यूनिवर्सिटी के सहयोग से वासद की SVIT कॉलेज के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा सर्वेलेंस IoT एप्लीकेशंस के लिए डीप लर्निंग बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें थाईलैंड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर द्वारा कॉलेज के छात्रों के साथ एनालिटिक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। वीडियो एनालिटिक्स और उसकी सुविधाएं, संशोधन, मशीन लर्निंग जैसे कई पहलुओं पर वेबिनार में चर्चा की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में देश के उद्योगपति, कर्मचारी, अध्यापक, संशोधनकार और देश विदेश की कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आखिरी वर्ष में पढ़ाई करने वाले छात्रों की उपस्थिति रही।
And as you can see, it's based on the data set that we have. I mean, if you can obtain many data set of the different type of the mole and so on that you have, then it is more useful, because it's mean like, because in deep learning you have several layers of the CNN, and then it will extract, it will learn like a different type of the tissue or something that you have. So it's mean that it has the, if you learn enough, then it is possible that you can classify, you can detect the symptom and so on. It's based on the data set that you have. भरूच जिला के आमोद आछोड़ रोड पर नशे में धुत 2 युवाओं द्वारा तेज रफ्तार से चलाई जा रही कार रेलवे फाटक से टकरा गई और बड़ा हादसा हुआ। कल रात करीबन 10 बजे के आसपास GJ16C8771 नंबर की कार दहेज से तेज रफ्तार से आमोद की ओर जा रही थी। इस दौरान आमोद आछोड़ रोड पर रेलवे फाटक निकट कार चालक द्वारा स्टीयरिंग से काबू गंवाने पर फिल्मी स्टाइल में हवा में उड़ती हुई ये कार रेलवे फाटक की लोहे की रेलिंग तोड़कर रेलवे के टेलीफोन के खंभे पर लटक गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा कार का दरवाजा खोलने पर एक युवक के हाथ में शराब की बोतल पाई गई, जबकि एक अन्य युवक नशे की हालत में खून से लथपथ देखा गया। इस दोनों युवकों को 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। नशे में धुत युवकों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। नवरात्रि से पहले ही शक्तिपीठ पावागढ़ में कोरोना को भुलाकर 1 लाख लोग माताजी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन देखा गया। 17 अक्टूबर से माताजी की आराधना का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। उससे पहले ही पावागढ़ में रविवार के दिन कोरोना को भूलकर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां उमड़ पड़े, जिसमें से करीबन आधे लोगों ने मास्क तक नहीं पहने थे और इतने सारे लोगों के एकत्रित होने से सोशल डिस्टेंसिंग भी सुचारू नहीं हो पाया। माची से नीचे की ओर कई किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम भी वहां देखा गया। नवरात्रि में हर साल यहां करीबन 1 लाख श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहां से कोरोना संक्रमण फैलने के डर से बाजार बंद रखे जाने की चर्चा है। व्यापारी भी स्वैच्छिक रूप से रोजगार बंद रखने पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में नवरात्रि में मंदिर खुला रखा जाएगा कि नहीं, ये निर्णय जल्द ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिया जाएगा। और अब नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। अदालत की ओर से इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोमवार को 7 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बने 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग का भी शिलान्यास किया। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाकों में सोमवार को बिजली सप्लाई बाधित हुई। मुंबई के दक्षिण, मध्य और उत्तर क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीबन 40% इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद होने से मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा कि टाटा कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल होने के कारण मुंबई में इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुई। बिजली आपूर्ति न होने के चलते मुंबई में 2 घंटे तक लोकल ट्रेन बंद रही। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 28वें मुकाबले में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आज आमने सामने होगी। लगातार 2 करीबी मैचों में जीत से आत्मविश्वास भरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ मैच में इस लय को बरकरार रखना चाहेगी।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन में जम्मू कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान से फिर एक बार हड़कंप मच गया है। केवड़िया में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में करीबन 150 अग्रणी और मेहमान शरीक होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए 32 समितियों का गठन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने अपने खर्च में कटौती करने की शुरुआत कर दी है। खासकर सरकार ने कई खरीदारियों पर रोक लगा दी है। राज्य के वित्त विभाग ने समीक्षा बैठक के बाद अगले साल तक नई खरीदारी नहीं किए जाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक नई खरीदारी नहीं की जाएगी। नए वाहन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, कंप्यूटर, प्रिंटर, जेरोक्स, एसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कूलर, फर्नीचर समेत की खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश से मॉनसून विदाई ले रहा है और सर्दियों का मौसम शुरू होने की कगार पर है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात में बरसात के एक और राउंड का अनुमान लगाया है। दरअसल मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बरसात होने की बात कही है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच लो प्रेशर क्रिएट होने के चलते फिर एक बार राज्य में बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। बोडेली के अलीपुरा 4 रास्ता पर डभोई की ओर जा रही ट्रक ने साइकिल सवार युवक को चपेट में ले लिया। ट्रक के साथ युवक 10 फीट तक घसीटा गया, लेकिन फिर भी हादसे में युवक बाल बाल बच गया है। हादसे में घायल युवक को इलाज हेतु बोडेली के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करजन विधानसभा उपचुनाव का आयोजन 3 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर सेमवा चौकड़ी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिनोर तालुका के पहले भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें विधायक शैलेश मेहता, विधानसभा के प्रत्याशी अक्षय पटेल, करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल, शिनोर तालुका भाजपा अध्यक्ष CM पटेल समेत के पदाधिकारी उपस्थित थे। शिनोर तालुका के अबाखल गांव में नर्मदा कैनाल निकट तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक किसान को संप में दुर्गंध की जांच करने पर मरा हुआ तेंदुआ देखने मिला। घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। तेंदुए की मौत किस वजह से हुई है, उसकी जांच चल रही है। भरूच जिला के वागरा तालुका के कोलवना गांव का निवासी पटेल परिवार पिछले 10 सालों से साउथ अफ्रीका में स्थायी हुआ है। इस परिवार का अफ्रीका में मैरिस्क बर्ड में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें साकिर पटेल और रोजमीना पटेल की मौत हो गई है। ये परिवार अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाने केक और गिफ्ट लेकर जा रहा था। उस वक्त ये घटना घटी। हादसे में छोटी सी बच्ची बाल बाल बच गई। राजपीपला के वार्ड नंबर 5 के आरब टेकरा इलाके में पानी की गंदगी की समस्या से महिलाओं में आक्रोश देखा गया। राजपीपला के वार्ड नंबर 5 इलाके में गंदगी और सुचारू जलापूर्ति का अभाव है, जिसके चलते स्थानीय महिलाओं में रोष का माहौल देखा जा रहा है। यहां सफाई कर्मचारी एक सप्ताह में एक ही बार सफाई के लिए आते हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। छोटाउदेपुर के नसवाड़ी के MGVCL कार्यालय पर किसानों ने हल्ला बोल किया। इन किसानों को पिछले 4 दिनों से सुचारू बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। बिजली आपूर्ति के अभाव में किसानों को फसल लेने में दिक्कत आ रही है। 5 दिनों से नसवाड़ी के MGVCL कार्यालय के हेल्पर से लेकर इंजीनियर को मामले की शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए किसान आक्रोश में आ गए।
वडोदरा क्राइम ब्रांच की टीम ने निजामपुरा इलाके की सोडा शॉप में छापेमारी कर आईपीएल की मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच क्रिकेट मैच पर खेला जा रहा सट्टा उजागर किया। इस मामले अजीत पटेल और केशव पटेल की गिरफ्तारी भी हुई और आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, एक एलईडी टीवी और सेटअप बॉक्स समेत का मुद्दामाल मिलाकर 18,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह वीएनएम है। आप खबरों से और कुछ खास चर्चाओं से अपने आप को अपडेट रखने के लिए जुड़े रहें वीएनएम टीवी के साथ। नमस्कार।